when I was in 9th class, I got opportunity to climb Mount Everest. So I got opportunity by my role model Praveen Kumar sir. He's the Secretary of Social Welfare Schools. So I am in 12th standard now. So after school selections, I went to Bongiri rock climbing training. So in Bonagiri, it is in Telangana state. So Bonagiri, we did 5 days training in Bonagiri. So it is a rock climbing training. So first day we went to that rock. I was scared. When I saw that 750 feet rock, I was scared. Oh God, how to climb this rock? I scared a lot when I saw that rock. But my coach Shekhar Babu sir, he encouraged me and he motivated me, and he told some instructions about rock climbing. So then I started to climb rock, and I learned bouldering, rappelling and rock climbing also in rock climbing training. So after that 5 days, I got A+ grade, first place in the rock climbing training. And 110 students are participated to this rock climbing training. Out of 110, 20 was selected for next training. So that is Darjeeling. In Darjeeling, we did 20 days training. It is a special basic course and advanced basic training. So we learn that how to walk in snow, ice, and we learn ice craft, snow craft, rock craft. So when this is the first time पहले बार मैंने आइस देखा था, स्नो में स्नो देखा था, तो I felt like a heaven. Oh, really, I felt like a heaven. That's the first time when I was walking in snow, I felt like a heaven. So this is one of happiness thing in Darjeeling, and we climb Renock Peak in Darjeeling. It is a 17,000 feet. We all 20 scale that, and after that 20 days training, out of 20, दार्जिलिंग में पहले बार दार्जिलिंग को पहुंचने के बाद हमको उधर दूसरा कोचेस हमको ट्रेनिंग दिया था, तो वो कोच ने हमको देख के क्या बोला मालूम, ये बच्चों क्या करेगा, इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगा, इसको यहाँ तक क्यों लेके आए ट्रेनिंग के लिए. आपने बोल रहा था कि ट्रेनिंग के लेके आ रहे हैं लोगों को, तो मैंने सोच रहा बड़ा लोग आ रहा है कि तो ये क्या करेगा, ये बच्चों क्यों लेके आया, ऐसे बोल रहा था वो कोच. तो मैंने सोचा हम क्यों नहीं करेगा, हमारे से क्यों नहीं होगा, विल डू एनीथिंग, कुछ भी करेगा, हम करके बताएंगे आपको. तो ऐसे बोल के उसका वर्ड वो बोला नेगेटिव, मैंने उसको पॉजिटिव करके मेरे ट्रेनिंग कंटिन्यू किया था. 20 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 20 मेंबर्स से 9 मेंबर्स को सेलेक्ट करके फिर दूसरा ट्रेनिंग के लेके गए लद्दाख में. इट इज़ इन लद्दाख विंटर एक्सपीडिशन. इट इज़ अ विंटर एक्सपीडिशन इन -30-35 डिग्रीज टेम्परेचर. सो इन लद्दाख वी डिड 15 days. वी स्पेंड 15 days इन लद्दाख. लद्दाख में पहुंचने के बाद वहाँ लोग, उधर का लोग दूसरा विलेज को चले जाते हैं क्योंकि वेदर ठंडी ज़्यादा रहती है, -30-35 डिग्रीज टेम्परेचर. तो उधर के लोग दूसरा विलेज को चले जाते हैं स्पेंड करने के लिए. तो वो हमको देख के ये पागल है क्या, क्यों आया ये सीज़न में लद्दाख को, क्यों आया, क्या करने के लिए आया, ऐसे बोल रहा था. तो हमने सोचा क्यों आया, कुछ करने के लिए ही आया है, कुछ करके ही बताएंगे आपको. ऐसे हमारे मन में हम ऐसे सोचा था. सोच के 15 days भी हमने सीखा था हाउ टू एडजस्ट इन कोल्ड वेदर, इन -degree टेम्परेचर, एंड how many dresses or how many layers we have to wear, dresses or socks or gloves, how many layers we have to wear that. And we learn these all things in Ladakh, and how to spend in tent. So we learned this all in 15 days in Ladakh. After that Ladakh training, out of 9 members, 2 was selected for Mount Everest climbing. So one is Anand Kumar and one is me. So we both are selected for Mount Everest climbing. So after selections,
for Mount Everest climbing, we have special training 3 months before Mount Everest climbing. 3 months training. It is a special training, physically, mentally fitness training. So we did 25 to 30 kilometers jogging, exercises, meditation, yoga in 3 months training, and special diet also. And we continued our training, my education also with training. So after this 3 months training, I completed my final exams. Then we are called to my parents to take permission to go Mount Everest climbing. So we call my parents, and my coach asked them, and he showed some videos and photos of Mount Everest to them. So उन्हें मेरे कोच ने पहुंचा था पेरेंट्स को, आपका बेटी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जा रही है, तो आप उधर कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो मर जाएगी आपका बेटी, नहीं आएगी पीछे, तो इट्स ए ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर, तो आप भेजने के लिए रेडी है क्या, कि पहुंचा था. तो मेरा पेरेंट्स, मेरे पापा ने बोला कि सर इतना दिन ट्रेनिंग दिया, आप भी लेके जा रहे हैं, मेरा बेटी इतना दिन ट्रेनिंग लेके अब रेडी हुआ माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, तो मेरा बेटी करेगी सर, लेके जाओ. मेरे पापा ने encourage किया था, वो इधर ही है. तो he is there, his name Devidas. My mother and father, they both are agricultural laborers. So मेरा मम्मी बोली कि नहीं, she cried, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ उसको. तो she cried, but I convinced her, कुछ नहीं होगा, मैं सेफली I'll come safely back. तो मैं जा रही हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं I'll come successfully back. इसे कन्विंस किया था मेरा कोच एंड रोल मॉडल प्रवीण कुमार सर ने भी कन्विंस करके वहाँ से एवरेस्ट क्लाइम को चले गए थे. सो अप्रैल 14th वी रीच्ड एट बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप इन 2014. सो पहुँचने के बाद उधर 5 दिन स्पेंड किया था हमने एवरेस्ट बेस कैंप में. तो 5 दिन में लाइक वी वेंट टू हाइकिंग नियर टू बेस कैंप, एंड वन डे वी हर्ड वन न्यूज़ फ्रॉम नेपाल साइड. That news is 17 Sherpas was dead because of avalanche. So वो news सुन के I feel sad, but I can't lose my confidence, energy, willpower. क्योंकि मेरा सामने जो मुझे मेरा गोल दिख रहा है, मुझे जाना है. तो वो न्यूज़ सुन के मेरा सेक्रेटरी प्रवीण कुमार सर ने मुझे फ़ोन किया था करके, यू कम बैक, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप साइड से भी एवलांच आएगा तो आप मर जाएगी, आ जाओ हैदराबाद को आ जाओ, बोला था. तो मैंने बोला सर आपने ही बोला था हमारा स्कूल्स का स्टूडेंट्स को रिवर्स गियर नहीं है कि, तो आई कांट कम बैक, आई वांट टू डू नो रिवर्स गियर. सर मैं नहीं आऊँगी, मैं करके ही आऊँगी, आपका ड्रीम मुझे फुलफ़िल करना है, इट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट एंड आई हैव टू गो एंड आई हैव टू सबमिट माउंट एवरेस्ट. सो ऐसे बोल के, और वी हैव 10 कमांडमेंट्स. 10 कमांडमेंट्स को मैं याद कर लिया था, तो वो 10 कमांडमेंट्स को मैं याद करके आगे गई. तो वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स इन माय एवरेस्ट एक्सपीडिशन. लाइक वी क्रॉस क्रेवास है, हम जो जा रहे हैं रूट में क्रेवास पे लैडर रख के क्रॉस करना है क्रेवास को, तो वो बहुत मुश्किल था क्रॉस करने. तो हमने शू के नीचे क्रैम्पोन्स अटैच करते हैं, तो वो क्रैम्पोन्स वी यूज़ इन ओनली आइस एंड स्नो, वी कांट वॉक ऑन लैडर. तो बहुत मुश्किल था वहाँ से वॉकिंग करना. तो धीरे धीरे से उसको भी क्रॉस कर दिया. करने के बाद एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 जाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क फॉर मी. I took 8 hours to reach Camp 1 from Advanced Base Camp.
तो क्योंकि इट्स ए वेरी स्टीफ क्लाइंबिंग, पूरा दिन स्टीफ क्लाइंबिंग था, 8 आवर्स लगा था मुझे। तो कैंप 1 को पहुंच गई, वहाँ से ऑक्सीजन, वी हैव टू यूज़ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ईच 1 सिलेंडर 4 kgs, वी हैव टू कैरी 6 सिलेंडर्स फॉर ईच 1। तो वो सिलेंडर्स को भी हम ही कैरी करके ऊपर गए। वी क्रॉस कैंप 2, वी रीच कैंप 3 ऑन 24th May 2014। सो 24th को मैं कैंप 3 को पहुंच गए। कैंप 3 इज़ कॉल्ड डेथ जोन। डेथ जोन क्यों बोलते हैं कि उधर ही ज़्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि उधर ही वी आर इन हाई अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, और कुछ प्रॉब्लम आके मर जाएंगे। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ से रात क्लाइंबिंग था हमको, लास्ट डे, लास्ट ट्रैकिंग, नाइट ट्रैकिंग। तो हमने स्टार्ट हो गया 9:30 को रात 24th को। जा रही हूँ, धीरे धीरे से जा रही हूँ, तो रात में मुझे थोड़ा चक्कर आया था। तो अभी मैंने शेरपा से, बैक सपोर्टर्स था 2, मेरे से 2 शेरपास था, उसको मैंने बोला था सर मुझे बैठने के लिए मन कर रहा है कि बोला। तो उधर बैठने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि एक साइड पे माउंटेन्स है, एक साइड पे वैलीज है, जाने का रास्ता ही है, तो बैठने के लिए जगह नहीं है। तो उन्हें बोला यहाँ तो जगह नहीं है, आगे जाके बैठेंगे। हाँ ठीक है सर चलो। तो आगे गए, आगे जाके एक प्लेस पे बैठ गए। उन्हें मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर चेक किया था, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर दिया। फिर करने के बाद वी स्टार्टेड कंटिन्यू। तो 15 मिनट्स के बाद मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी माउंट एवरेस्ट पे। तो वो टाइम पे मैंने देखा डेड बॉडी। आई स्केर्ड अ लॉट, ओह गॉड, मुझे भी ऐसे हो जाएगा क्या। मैंने सोचा मुझे भी ऐसे हो जाएगा क्या, मुझे भी इधर ही छोड़ के जाएंगे। आई थिंक लाइक दैट, बट immediately I remember my 10 commandments and my role model Praveen Kumar sir, my parents, teachers, friends, they are waiting for my success and I have to prove that girls can do anything. So I want to prove that. तो मुझे आगे जाना है, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो जाना है, मुझे आगे मेरा गोल दिख रहा है, आई वॉन्ट टू रीच दैट। तो वो डेड बॉडी को भी क्रॉस कर दिया, ऊपर चले गए। एग्जैक्टली 6 o'clock 25th May संडे 2014 को मैं ऊपर पहुंच गई। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज इन टॉप ऑफ द एवरेस्ट। आई लुक अराउंड, आई सा ओनली माउंटेन्स, माउंटेन्स ही दिख रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज इन टॉप एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंस। मेरा लाइफ में मैं कुछ भी करूँगी, वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गए मेरा लाइफ में वो टाइम पे। तो पहुँचने के बाद वहाँ आफ्टर दैट वी होस्टेड आवर इंडिया फ्लैग ऑन टॉप एंड 10-15 मिनट्स वहाँ स्टे करके फिर नीचे आ गए। सेम रूट, सेम। इट्स टुक 52 days टोटल एक्सपीडिशन। मेरा जर्नी में मुझे एवरेस्ट देख के डर नहीं लगा था, एवरेस्ट से डर नहीं लगा था, मुझे बोनगिरी देख के डर लगा था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टेप था, उसके आगे कुछ नहीं मालूम है, इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेप था, इसीलिए मैं डर लगा था मुझे बोनगिर से। तो मेरे जर्नी में मैं सीखा, मेरा पूरा जर्नी में मैं सीखा कि कुछ काम कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप। उससे डर लगता, बट वी हैव टू टेक कंपल्सरी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, माई मैसेज यू ऑल दैट नॉट ओनली यू इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड पीपल्स, सो माई मैसेज इज दैट वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप। You all have a personal goal in your personal Mount Everest in your life, like doctor, engineer, or any other, whatever you. So
वी हैव टू रीच दैट, सो वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है, सबको फर्स्ट स्टेप लेना।